नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावलियुतनिदाता। प्रवचन सार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित प्रवचन सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित प्रवचन साરની ટીકા તત્વ પ્રદીપિકા એનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં જ્ઞાન તત્વ પ્રજ્ઞાપનમાં આપણે સુખ અધિકાર પૂરો કર્યો, 68મી ગાથા સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો। હવે આજે શુભ પરિણામનો અધિકાર શરૂ થાય છે। 69મી ગાથાથી શુભ પરિણામ અધિકાર શરૂ થાય છે। જ્ઞાન તત્વ પ્રજ્ઞાપનનો જ આ અધિકાર છે। તો અહીંયા 69મી ગાથાના ઉपोद्घातમાં કહે છે કે હવે ઇન્દ્રિય સુખના સ્વરૂપ સંબંધી વિચાર ઉપાડતા એવો વિચાર આરંભ કરતા તેના એટલે ઇન્દ્રિય સુખના સાધનનું સ્વરૂપ કહે છે, એટલે કે શુભ ઉપયોગનું સ્વરૂપ કહે છે। શું કહ્યું? ઇન્દ્રિય સુખના સ્વરૂપનું સંબંધી વિચાર કરવામાં આવે છે ત્યારે એ ઇન્દ્રિય સુખ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય, એનું સાધન શું? તો કે એનું સાધન શુભ ઉપયોગ છે। શુભ ઉપયોગ, શુભ ભાવ, શુભ ઉપયોગ। તો એ શુભ ઉપયોગ કેવી રીતે છે એ શુભ ઉપયોગનું સ્વરૂપ કહે છે। તો 69મી ગાથા સંસ્કૃતમાં આ પ્રમાણે છે। દેવતાયતિ ગુરુ પૂજાસુ ચૈવ દાને વા સુશીલેષુ ઉપવાસાદિષુ રક્તઃ યોગાત્મક આત્મા। 69મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે, ગુજરાતીમાં 69મી ગાથા આ પ્રમાણે છે। ગુરુ દેવ યતિ પૂજા વિશે વળી દાન ને સુશીલો વિશે जीव रक्त उपवास आदि के शुभ उपयोग स्वरूप है। 69મી ગાથાનો અન્વયાર્થ આ પ્રમાણે છે। દેવતાયતિ ગુરુ પૂજાસુ એટલે દેવ ગુરુને યતિની પૂજામાં, દાને ચ એવ સુશીલેષુ વા ઉપવાસ આદિષુ દાનમાં, સુશીલોમાં तथा उपवास आदिक में रक्त आत्मा शुभ उपयोगात्मक, रक्त आत्मा शुभ उपयोगात्मक है। શું કહે છે કે દેવ ગુરુ અને યતિની પૂજામાં, દાનમાં, સુશીલોમાં તથા ઉપવાસ આદિકમાં રક્ત આત્મા શુભ ઉપયોગાત્મક છે। ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે જ્યારે આ આત્મા દુઃખના સાધનભૂત એવી દ્વેષરૂપ તથા ઇન્દ્રિય વિષયના અનુરાગરૂપ અશુભ ઉપયોગ ભૂમિકાને ઓળંગી જઈને દેવ ગુરુ યતિની પૂજા, દાન, શીલ અને ઉપવાસ આદિકની પ્રીતિ સ્વરૂપ ધર્મ અનુરાગને અંગીકાર કરે છે, અંગીકૃત કરે છે, ત્યારે તે ઇન્દ્રિય સુખના સાધનભૂત શુભ ઉપયોગ ભૂમિકામાં આરૂઢ કહેવાય છે। એવી શુભ ઉપયોગ ભૂમિકામાં આવ્યો એમ કહેવાય છે। ક્યારે? તો કે જ્યારે આ આત્મા દેવ ગુરુ યતિની પૂજા, દાન, શીલ અને ઉપવાસ આદિની પ્રીતિ સ્વરૂપ ધર્મ અનુરાગને અંગીકૃત કરે છે, ત્યારે
ત્યારે એ શુભ ઉપયોગમાં આવ્યો એમ કહેવાય છે. અને એ શુભ ઉપયોગ ઇન્દ્રિય સુખના કારણરૂપ છે, સાધનરૂપ છે. એની પહેલા એક વાત એ કરી કે જ્યારે આ આત્મા જે દુઃખના સાધનભૂત એવા જે આ દ્વેષ, સુખ તથા ઇન્દ્રિય વિષયના અનુરાગરૂપ અશુભ ઉપયોગ જે છે, એવા અશુભ ઉપયોગને ઓળંગી જઈને, અશુભ ઉપયોગરૂપ ભૂમિકાને ઓળંગી જઈને આવી રીતે શુભ ઉપયોગરૂપ ભૂમિકામાં આવે છે, તો એને ઇન્દ્રિયના સુખના સાધનભૂત શુભ ઉપયોગમાં આવ્યો એમ કહેવાય છે. અને એમાં એને પૂજા, ઉપવાસ આદિની પ્રવૃત્તિ હોય છે. આ કહે છે ભાવાર્થમાં અહીંયા કહે છે કે સર્વ દોષ રહિત પરમાત્મા તે દેવ. જો દેવની વ્યાખ્યા કરવી છે, ત્રણની વ્યાખ્યા કરશે, યતિની પણ વ્યાખ્યા કરશે, ગુરુની પણ વ્યાખ્યા કરશે. એટલે કહે છે કે સર્વ દોષ રહિત પરમાત્મા તે દેવ. જો દેવલોકના દેવની વાત નથી. દેવ કોને કહેવાય? અરિયંત પરમાત્મા દેવ છે, કેવળી ભગવાન દેવ છે, તીર્થંકર ભગવાન દેવ છે, સિદ્ધ ભગવાન દેવ છે. જે સર્વ દોષ રહિત પરમાત્મા તે દેવ, ભેદ અભેદ રત્નત્રયના પોતે આરાધક તથા તે આરાધનાના અર્થી અન્ય ભવ્ય જીવોને જીન દીક્ષાના દેનાર તે ગુરુ. પોતે ભેદાભેદ રત્નત્રયના પોતે આરાધક તથા તે આરાધનાના જે અર્થી છે, એવી આરાધના કરવા જે આવ્યા છે, એને જે જીન દીક્ષા આપે છે, એવા તે ગુરુ. બે વાત થઈ, દેવ અને ગુરુ. પછી ત્રીજું કહે છે કે ઇન્દ્રિય જય કરીને શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપમાં પ્રયત્ન પરાયણ તે યતિ. ઇન્દ્રિય જય કરીને શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપમાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, એમાં જ રહે છે, એવા તે યતિ. આવા દેવ ગુરુ યતિની કે તેમની પ્રતિમાની પૂજામાં આહાર આદિ ચતુર્વિધ દાનમાં, 4 પ્રકારના દાન, આહાર દાન, ઔષધ દાન, શાસ્ત્રનું દાન વગેરે જે કહેવામાં આવે છે, તે એવા ચતુર્વિધ દાનમાં આચારાંગ આદિ શાસ્ત્રોમાં કહેલા શીલ વ્રતોમાં તથા ઉપવાસ આદિ તપમાં પ્રીતિ તે ધર્મ અનુરાગ છે. જે આત્મા દ્વેષરૂપ અને વિષય અનુરાગ રૂપ અશુભ ઉપયોગને ઓળંગી જઈને ધર્મ અનુરાગને અંગીકાર કરે છે, તે શુભ ઉપયોગી છે. એટલે કે તે શુભ ઉપયોગમાં આવ્યો છે. અશુભને ઓળંગી જઈને, એટલે અશુભ ઉપયોગ તો રહ્યો નથી. અને ધર્મ અનુરાગ છે ને, એને ધર્મ અનુરાગમાં એ આ શીલ વ્રત આદિ વ્રતોમાં છે, ઉપવાસ આદિમાં, તપમાં એમાં પ્રીતિ કરે છે, એમાં એને ધર્મ અનુરાગ છે. અને દાનમાં, દાનના શ્રેષ્ઠ પાત્ર તો મુનિરાજ હોય છે, એને અભયદાન આપવામાં આવે, એટલે કે એમની રક્ષા કરવામાં આવે એવી રીતે હોય છે. આહાર દાન હોય, ઔષધ દાન હોય, શાસ્ત્રનું દાન હોય. તો એવા 4 પ્રકારના દાનમાં જે પ્રવૃત્ત છે, અથવા દેવ ગુરુ યતિ ની પૂજામાં, અથવા તો એવા દેવની પ્રતિમાની પૂજામાં જે અનુરાગ ધરાવે છે, એ બધા શુભ ઉપયોગી છે. તો આ શુભ ઉપયોગની વાત કરવામાં આવી. અને શુભ ઉપયોગનું ફળ એ શું છે? તો એ બાહ્ય સુખની પ્રાપ્તિ છે. એટલે આખા અધિકારને અહીંયા જે રીતે કહેવામાં આવ્યો છે, તે શરૂઆતમાં જે વાત લીધી કે આ જે વાત કરવામાં આવે છે, એ શુભ ભાવના કારણે, એટલે કે શુભ ભાવ થતા જે પરિણામ થાય છે, તો શુભ પરિણામ ને કારણે જે કઈ વાત છે, એ અહીંયા કહેવામાં આવી છે. એમાં સૌથી પહેલું આ જે સુખ, એટલે ઇન્દ્રિય સુખ, એ ઇન્દ્રિય સુખ નો વિચાર કરવામાં આવ્યો, જે શુભ ઉપયોગને કારણે હોય છે. તો આ
69મી ગાથા છે. આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવે જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈએ છીએ. પ્રવચન સુધા ભાગ 3, એમાં પાન નંબર 212 છેલ્લેથી અહીંયા ગુરુદેવ વાત સમજાવે છે, એટલે અધિકારની શરૂઆત કરે છે. अब यहाँ शुभ परिणाम का अधिकार, अब शुभ योग का अधिकार करते हैं. शुभ परिणाम किसको होता है न क्या है? शुभ भाव, पुण्य भाव, बंध का कारण कैसे किसके होता है, ये बात चलती है. अब इंद्रिय सुख स्वरूप संबंधी विचार को लेकर उसके साधन का शुभ उपयोग क्या कहते हैं? हाँ, तो अतीन्द्रियानु साधन तो आत्मा है. હવે શુભ ઉપયોગ जो है, ज्ञानी को भी शुभ उपयोग आता है, पर वो इंद्रिय विषय का साधन है. शुभ उपयोग में तो इंद्रिय का विषय मिलेगा, अतीन्द्रिय विषय नहीं मिलेगा. समझ में आया? ये स्वरूप कहते हैं. 69 देव देवद जति गुरु पूजासु सेवदानमी वासु सिद्धेसु उपवासादि सूरतो सोवजुगोपा. नीचे हरिगीत. गुरुदेव यति पूजा विषय, देव गुरु ने यति ની પૂજા વિશે, વળી દાન ને સુશીલો વિશે, जीव रक्त उपवास आदि के उपवास तप आदि शुभ उपयोग स्वरूप है. ये तो शुभ राग स्वरूप है. शुभ उपयोग बंध का कारण है, आता है, ज्ञानी को भी आता है कहेगा, पर ये बंध का कारण है. शुभ उपयोग इंद्रियना विषयना साधन है, अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद साधन ही नहीं. ठीक है. ठीक है. ठीक है. जब यह आत्मा दुख के साधन भूत ऐसी द्वेष रूप यानी इंद्रिय विषय की अनुराग रूप और शुभ उपयोग का भूमिका का उल्लंघन करके क्या कहते हैं? जब यह आत्मा दुख का साधन भूत ऐसी द्वेष रूप और इंद्रिय विषय का अनुराग रूप अशुभ रूप हो, ये भूमिका का उल्लंघन करके अशुभ उपयोग छोड़ करके शुभ उपयोग में जब आते हैं, है बंध का कारण, ये इंद्रिय विषय का साधन है, अतीन्द्रिय आत्मा का साधन है, शुभ उपयोग नहीं. है देव गुरु यति की पूजा अशुभ उपयोग उल्लंघन करके, अशुभ उपयोग को छोड़ करके देव अरिहंत परमात्मा गुरु अर्थ करेगा यतिनी पूजा. एम गुरु देव गुरु ने यतिनी प्रतिमानी पूजा अर्थમાં લેશે. समझ में आया? ये शुभ उपयोग है. है देव गुरु अति पूजा. दान, ये मंदिर बनाना, पैसा खर्चना, दान में, ये दान सब शुभ उपयोग है, इंद्रिय विषय का साधन है. अतीन्द्रिय विषय शिव शरीर से ब्रह्मचर्य पालना, ये पण एक शुभ उपयोग है. कसाय मंद राखना, ये शील. उपवास आदि, उपवास, अनुद्री, अनुसरण,
शादी करना ये प्रीति स्वरूप, उसकी प्रीति स्वरूप धर्मानुराग को अंगीकार करता है, ये धर्मना प्रेमनो अंगीकार करते हैं, ये वह इंद्रिय सुख की साधनभूत शुभ उपयोग भूमिका में आरूढ़ कहलाता है। पहला अतीन्द्रिय आनंदमय प्रभु आया, उसका साधन तो अंतर में राग से भिन्न होकर अनुभव करना वो साधन है। हवे अंदर जब अंदर स्थिर नहीं रह सके तो धर्मी को भी अशुभ से बचने को शुभ आता है, पर ये शुभ उपयोग विषय का दुख का साधन है। समझ में आया? पैसा पैसा तो कहीं रही जाए, शुभ की पैसा मरसे तो दुख ना साधन एम कहते हैं। दुख नो निमित्त है, दुख ममता है, दुख है, उसका वो निमित्त है। पहला ज्ञान अधिकार आया, પછી आनंद अधिकार आया, હવે शुभ उपयोग अधिकार कहते हैं। केम शुभ उपयोग आते तो है ना धर्मी को भी, पर ये शुभ उपयोग कौन है कि अशुभ उपयोग उल्लंघन कर छोड़कर शुभ उपयोग होता है। હવે उसकी व्याख्या भावार्थ, सर्वदोष रहित परमात्मा ये देव है सर्वदोष रहित परमात्मा त्रिलोकनाथ हरिहंत देव, एनी पूजा आदि का भाव ये शुभ भाव है। इतराजता जब लग्न हो तो ज्ञानी को भी अशुभ से बचने को शुभ भाव आता है, और शुभ भाव है बंध का कारण, धर्म नहीं, ये आत्मा का आनंद का कारण नहीं। है सर्वदोष रहित परमात्मा ही देव, भेदा भेद रत्नत्र के स्वयं आराधक गुरु, अंतर निश्चय स्वरूप भगवान आत्मा, उसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय आराधक, और व्यवहार आता है शुभ राग, तो निश्चय ने व्यवहार ना आराधक व्यवहार कहते हैं। है भेदाभेद रत्न तरीके, भेद नाम व्यवहार, अभेद नाम निश्चय। धर्मी को भी निश्चय रत्नत्रय के साथ में जब लग पूर्णता न हो तब लग व्यवहार रत्नत्रय का शुभ भाव, देवगुरु शास्त्र की भक्ति आदि आता है, पण है व्यवहार ने राग। भेदा भेद रत्नत्रय के स्वयं आराधक, और उस आराधना के अर्थी अनुभव जीवों को जिन दीक्षा देने वाला, स्वयं आराधक और आराधना न अर्थी, धर्मी आराधना न अर्थी अनुभव जीवों को जिन दीक्षा देने वाला है गुरु, जिन दीक्षा वितरागी दीक्षा देने वाला है गुरु। समझ में? गुड़ में ही नहीं है। जैन में अनंत बार मुनिव्रत धार अनंत बैर गृहे को बजायो, पण आत्मज्ञान बिन रेस सुख न पायो। मुनि थया दिगंबर थयो, हजारों रानी ने छोड़ी, पंच महावर्त लिया, 28 मृगों पाया, पण ये तो आश्रम न राग है। है जिन दीक्षा देने वाला गुरु है। इंद्रिय जय करके शुद्धात्मा स्वरूप में प्रयत्न परायणी यति, यति है शब्द, यति એટલે ગતિ नहीं। इंद्रिय जय करके शुद्धात्मा स्वरूप में प्रयत्न परायण, अंतर आनंद स्वरूप में प्रयत्न परायण ये यति। यति जति बाबा अपना आनंद स्वरूप में यतना करे ते यति।
ऐसे देव गुरु यति की, ऐसा देव गुरु ने यति की अथवा उनकी प्रतिमा की पूजा में शुभ राग है, शुभ उपयोग है। समझ में आया? शाश्वत प्रतिमा है, असंख्य इंद्रों पूजा करते हैं। एक अवतारी सक्रेंद्र सुधर्म देवलोक 32 लाख विमान, एक एक विमान में असंख्य देव, करोड़ों पैसराओं है आत्मज्ञानी संकीर्ति। इंद्रिय सुख में सुख मानते नहीं, आत्मा का अतीन्द्रिय सुख में सुख मानते हैं। पर जब जाके भगवान की प्रतिमा आदि का पूजा का भाव आता है ना, आज क्या है यार, नंदीश्वर दीप अष्टानी का है, तो देवो जाते हैं। 8वां नंदीश्वर दीप है, जहाँ 52 जिनालय है शाश्वत। एक एक जिनालय में 108 प्रतिमा है, रतननी बरेली। 8 दिन, आज 7वां दिन है, 7वां दिन है, कल 8वां, 7 है ना, कल 8वां छेल्ला दी। बेन दीकरी कर्यु था ना बधु पूजाનું। नंदीश्वर दीप में दिगंबर शास्त्रों में पण है, श्वेतांबर शास्त्र में पण है, स्थानक पाशीना श्वेतांबर शास्त्र है तो उसमें भी है। नंदीश्वर दीप 8वां है, 52 जिनालय है, बड़ा शाश्वत हो, कोई करेला नहीं। जेमा चंद्र सूर्य शाश्वत है, ऐसी प्रतिमा वो 108 एक एक जिनालय में, ऐसा 52 जिनालय तो नंदीश्वर दीप में है। एवं असंख्य प्रतिमाओं चंद्र सूर्य असंख्य है, तो दरेक में जिनालय है, दरेक में जिन प्रतिमा शाश्वत है। वैमानिक देव में सुधर्म देवलोक से मांडे में त्या प्रतिमा शाश्वत वैमान में है। ये इंद्रो जब अपना स्वरूप में ठहर नहीं सकते हैं, तब ये इंद्र भगवान की शाश्वत प्रतिमा की पूजा करते हैं। बड़ी शुभ भाव है। बन का कारण है। पुण्य को के बनનું કારણ को, सोनाની બેડી को, લોઢાની બેડી को। आता है एक अवतारी संकेती कहा ने, इंद्र एक एक बहुतारी है, सुधर्म देव का भी चक्रेंद्र एक बहुतारी, एनी करोड़ों पैसराओं से, एમાં एक रानी एक बहुतारी है। मुख्य रानी जो एक है, एक बहुतारी, एक भाव मुख जाना, पति पत्नी दो ही एक मनुष्य भाव करके मुख जाना है। ये देव ने इंद्राणी पण त्या नंदीश्वर दीपे अत्यारे जाते हैं। शाश्वत प्रतिमा जिनालय भगवान विराजते हैं, जाने हमना बोल से ऐसे रतनमय शाश्वत है, असंख्य देवलोक में शाश्वत है। जेम त्रिकाल में त्रिकाल के जानने वाला का विरह नहीं, एम त्रिकाल में त्रिकाल की प्रतिमा जो शाश्वत है उसका जगत में विरह नहीं। वस्तु स्थिति से बापू शू करिए, અત્યારે તો ગડબડ હોગી બધી। इंद्र जरा उपजे છે સમકીથી सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी जहाँ इंद्रपण उतरते हैं तो तरत पूजा करने को जाते हैं। भगवान की पूजा करने तैयारी करो। देवो हाथी का रूप धारण करे, हाथी ऊपर पोते चढ़े, देव हाथी ना रूप धारण करे, सेवक कोई नहीं। हाँ, हजारों देव रानियों साथ भगवान की पूजा प्रतिभा पर जापन है। शुभ शुभ उपयोग, ये धर्म है कि आत्मा का धर्म का साधन ये नहीं। આવી વાત है। પણ અશુભથી કહ્યું ને પેલું, અશુભથી વંચનાર્થ, અશુભ को छोड़कर उल्लंघन कर
शुभ भाव आता है અને શુભ को उल्लंघन कर शुद्ध होता है। है कारण कारण है नहीं। ये विषय का साधन है तो भगवान कह रहे ये तो विषय का सुख का साधन है। संकीर्ति को भी आता है शुभ भाव, पर उसको अनुकूल विषय का साधन मिलेगा, स्वजात मिलेगा। और चेतन जी अभी बात है क्या? भगवान कुमकुंडाचा तो स्पष्ट करते हैं, उसको कोई जगत की पड़ी नहीं, सच मार्ग है ये प्रसिद्ध करते हैं। ये कहते हैं क्या है ना, देव गुरु न यति एनी अथवा उनकी प्रतिमा, દેવની प्रतिमा गुरुની પણ प्रतिमा यतिની પણ प्रतिमा होती है, पंच परमेश्वरी प्रतिमा होती है। समझ में आया? महाविदेह में पंच परमेश्वरी की प्रतिमा है, भगवान बिराजते हैं जी, यहाँ पंच परमेश्वरी की प्रतिमा है, मंदिर है, जैन मंदिर है, दूसरा कोई मंदिर नहीं, अनुमति का कोई मंदिर नहीं, अनुमति का कोई वेश नहीं गुरु का, अभिप्राय में फेर है सब में बहुत, दूसरी चीज भाई में नहीं। शाश्वत कृत्रिम ત્યાં तो बनाए मंदिर है, महाविद्य में मंदिर शद्दीप में तो शाश्वत है। समझ में आया? वो कहा था ना एक बार में कि श्वेतांबर शास्त्र में, दिगंबर शास्त्र में तो आते ही है, पर श्वेतांबर शास्त्र में द्रुपति की बात आती है। द्रुपति पांडव की स्त्री, पांच पांडव को जारी परमते हैं ने तो मंदिर का दर्शन करने को जाते हैं, ज्ञाता सूत्र में है। सब लोग व्याख्यान में हम तो किया ना, सब करोड़ों श्लोकों गर्भ सब लिखा। तो ये वंदन करने को जाते हैं, जिन भवन है, तो मैं तो ऐसा कहा कि तो जो आज जिन भवन जो न बनेला हो तो प्रतिमा आई कहां से? जिन भवन पाठ है અને આપણા ભાઈ અષ્ટપાઉડ है ना, कुंकुंदाचार अष्टपाउड, उसमें पाठ है कि जिन भवन में मुनियों रहते हैं, तो किदू जिन भवन में हो तो मुनियों रहते हैं कहां से? जिन भवन कृत्रिम भी है, अकृत्रिम तो है, पर कृत्रिम भी जिन भवन में है, पाठ है ना, बताइए तुम क्षमा से भाई, खबर से क्या पाउड नहीं? दर्शन ज्ञान चरित्र बहुत पाउड, बहुत पाउड, बहुत पाउड। समझ में आया? शाश्वत प्रतिमा है तो उसकी इंद्रों भी पूजा करते हैं। तो बात इतना है कि पूजा का भाव ही शुभ है। कोई उसको धर्म मान ले और परंपरा कारण सेठ क्या न भी शासन भाषा ऐसी आती है, तो उसका अर्थ ये कि छोड़ कर होता है। शुभ राग है तो राग है ना, बंध का कारण है, आया आते हैं, ये तो उसको कहते हैं ना देवगुरु इति की पूजा न देवगुरु इति की प्रतिमा की पूजा। प्रवचन साहब भाई छेल्ले આવે છે ને, પૂજાનો ઉપદેશ કરે, મુનિઓ દેવ પૂજા પ્રતિમાનો ઉપદેશ કરે છે। વિકલ્પ પૂજા વિકલ્પ છે શુભ રાગ, પણ એ ઉપદેશ જીન પૂજાનો કરે, વિતરાગ की प्रतिमा પૂજવાનું છે और ये शुभ भाव છે, એ વાત છે, એનું જ્ઞાન કરાવો, આદરણીય છે ને હિતકર છે નહીં। અરે આવી વાતો હે બિલકુલ વ્યવહારથી કહેવાય પૂજ્ય, વ્યવહાર નહીંથી વ્યવહાર પૂજ્ય કહેવાય, તો નિશ્ચય છે તો પૂજ્ય આત્मा એ પર નહીં। આવી વાત આકરી પડે ભાई। भगवान एम कहते हैं, क्या कहते हैं? शुभ उपयोग कहते हैं। साक्षात भगवान विराजते हैं समोसण में, उसकी पूजा करते हैं
હીરાના થાવ, મણિરત્નના દીવા, કલવૃક્ષના ફૂલ, અનંતવાર ઉપજે ત્યાં મહાવીરમાં. અનંતવાર પૂજા ક્યાં ભગવાન? જય ભગવાન. साक्षात प्रतिमा भगवान हो, ये शुभ भाव है. पर द्रव्य का अलग जाना ये शुभ भाव है. स्त्री कुटुंब परिवार का अलग जाना यह शुभ भाव है. देवगुरु शास्त्र का अलग जाना ये शुभ भाव है. पर का आश्रय करना क्या शुभ भाव के अशुभ आया बिना रहे ही नहीं. समझ में आया? आखिरी बात भाई, जगत में बेसवी अनेकांत मार्ग. ये क्या है? मैं कहा था रात्रि को, मैं 73 में जवाबीगम सूत्र है, 32 सूत्र में श्वेतांबर ये वांचते थे हम तो, बहुत सब देखे थे. तो उसमें जवाबीगम सूत्र है क्या हमारे दामनगर दामोदर तो जवाबीगम सूत्र में लाल लगाया है कंकु, ऊपर कंकु है. जैसे हम वांचते थे अंदर, वांचते में ऐसा आया. 73 की साल की बात है कि शाश्वत प्रतिमाओं है ये जिनना ऊंचा प्रमाण में है. जैसा यहाँ वितराग 8 हाथ का ऊंचा है महावीर, ऋषभदेव 5 से धनुष का, तो ऐसी प्रतिमा पण 7 हाथ ने 5 से धनुष की ऊंची है. जीणों से प्रमाणे जीनना ऊंचा प्रमाण में प्रतिमा तो स्थानक वासित माने नहीं. मैं वांचू 73 में दुख कहा क्या मानते नहीं प्रतिमा को था तो काठ में है. मैं खानगी पूजा पूछा मूलचंद जी को, જોયા था મૂળચંદ? नहीं, ત્યાં આપણે હિરાજ મારણ બાજાતા હતા એ વખત નહીં, 74 ત્યાં સુરેન્દ્રનગર બધા સ્કૂલની હેઠે બાજા હતા ત્યારે મૂળચંદ હતા. હીરાજી ગુરુ મારા ગુરુ હતા ને સંપ્રદાય, એને ત્યાં રસ્તા મરી ગયા હતા, ત્યાં બાજા હતા. ત્યાં જ્યાં હતા ને ત્યાં એ મૂળચંદજીને ખાનગી પૂછ્યું मैं, महाराज शास्त्र में तो ऐसा आता है कि शाश्वत प्रतिमा जीनना ऊंचा प्रमाणમાં અને વિતરાગના ઊંચા પ્રમાણમાં જે બે દેહ હોય એને જક્ષણી કેમ કહેવાય? તમે તો જક્ષણી કહો છો બધા, કારણ એમ નહોતું મેં કહ્યું, કારણ એમ તો પછી ભગવાન મને કીધું આ શાસ્ત્રમાં તો આમ પાઠ છે. ત્યારે ખાનગી કહે કોઈ નહીં, એક ને હું 2 હતા. है तो तीर्थंकर की प्रतिमा शाश्वत. यारे भाई ओडू नहीं जीवाभिगम गोंडल वाला बोला नहीं, मूसू वाला नेमचंद भाई नेमचंद हीराचंद एना तरफ थी जीवाभिगम सूत्र बांटता है. मैं तो सब देखा है ना पुस्तक, सबका हजारों लाखों करोड़. तो उसका सबसे पुस्तक निकला था भाई जानते हैं યાદ માટે નાખ્યું. તેમાં શાશ્વત પ્રતિમામાં જક્ષણી થતી, એમાં જક્ષણી પુરુષોત્તમ જે હતા ગોંડા વંગાડા, એને જક્ષણી એમાં લખી. મેં આને પૂછ્યું, કીધું આ જક્ષણી પ્રતિમા લખી છે આમાં, અને આ તો જીનના ઊંચા પ્રમાણમાં ભગવાન તો કે છે તો તીર્થંકરની હોય. અરે તમે બહારમાં કંઈ કહો, અંદરમાં કંઈ માનો, કીધું મારી શ્રદ્ધા ઉઠી ગઈ, सबसे श्रद्धा उठी गई कि सिद्धांत हम कहते हैं, दिगंबर शास्त्र कहते हैं, श्वेतांबर शास्त्र कहते हैं, संस्कृत शास्त्र कहते हैं कि शाश्वत प्रतिमा अनादि अनंत है. અને ઇન્દ્રો પણ ઉચકી પૂજા કરતે ને તમે એને જક્ષને ઠરાવો નહીં. है तो सच ना. मैं कीधु मुफती में આવી ગયા મેટી અમે માનીએ, અમે ऐसा नहीं है. हमने तो सच लागेगा ही मानेगा, हम तो छोड़ दी गाठोड़ में. हम कुछ बोले नहीं, कोई હું કઈક બોલીશ તો મને છોડી દેશે. હું કઈ સંપ્રદાય આવી ગયો મેટી તો માનવા એમ નહીં. मैं तो सत्य होगा ये मानूंगा. સંદીભાઈ આ 73ની સાલની વાત, કેટલા વર્ષ થયા? હે 65 વર્ષ પહેલાની વાત છે. હા હા.
તમારા જન્મ પહેલાની વાતો છે. ભગવાનની પ્રતિમા તીર્થંકરની શાશ્વત હાથ ઊંચી અને 500 ધનુષ ઊંચી. રતનની ઇન્દ્રો જેને પૂજા કરે, પગમાં ઘૂઘરા બાંધીને નાચે ઇન્દ્રો. ત્યારે નંદીશ્વર દીપમાં પણ ઇન્દ્રો જાતે ઘૂઘરા બાંધી નાચતે ત્યાં. જાણે પણ આ ઘૂઘરાની જડની ક્રિયા પરની है मेरी नहीं, અને मेरे भाव आता है शुभ भाव है. ये धर्म नहीं, ये धर्म का कारण भी नहीं. कहा ने ये शुभ भाव विषय का साधन का कार साधन है. हा शुभ भाव से पुण्य बंधेगा. पुण्य बंधશે દેવલોક આદિ કાકા પૈસાના શેઠિયા ધૂળ ના કહેવાય એવા પૈસા મળેગા. નરેન્દ્રભાઈ પીટે ના પીટે નથી એમ કે ભાઈ વાત સાચી છે. ધોકા પડતે ममता से ना पैसा मारो धूल तो धूल है. हाँ तो परमात्मा एम कहते हैं कि मुकुंदाचा कि अशुभ से छूटने से उलंकर शुभ भाव आता है, पर ये शुभ भाव विषय सुख ना साधन है. एनाथी पुण्य बंधेगा, पुण्य से स्वर्ग आदि मिले અને ત્યાંથી નીકળે તો પુण्य વિશેષ હોય તો શેઠિયા થાય બધું પછી. પણ એ વિષયના સુખના સાધન આવે ખરું. અશુભથી બચવા ધર્મી કો भी शुभ आवे खरा, પણ એ વિષય સુખના સાધન है. अतीन्द्रिय सुख भगवान का भी साधन नहीं. संधि भाई જીવાભિમાન ભાઈ ત્યાં હું લેખ છે કે આ પ્રતિભાને દેખે જાણે હમણાં બોલશે એવી પ્રતિમાઓ છે, એવો પાઠ છે. હમણાં બોલશે એમ રતનની પ્રતિમા શાશ્વત. જેમ ભગવાન શાશ્વત त्रिकाली सर्वज्ञ तो शाश्वत होता है ना, कोई भी सर्वज्ञ न हो जगत में ऐसा नहीं, अनंत काल से सर्वज्ञ होता है. भगवान तो सर्वज्ञ महाविधि में तो त्रिकाली कायम होता है. तो जब त्रिकाली सर्वज्ञ परमात्मा है, त्रिकाली भगवान की प्रतिमा शाश्वत है. समझ में आया? ये आई बात करते हैं. पर उसकी पूजा का भाव शु उपयोग है. अशुभ थी बचना, अशुभ थी छोड़ना, वंचनार्थ है वो पाठ है 85 इकाई में. अशुभ वंचनार्थम भाई है ना, अशुभ वंचनार्थ भाई 85 इकाई टीका अमरचंद्राचार्य. अशुभ वंचनार्थम धर्मी को भी शुभ आते हैं. वो धर्म मोक्ष का कारण है कि धर्म का कारण है, ऐसे नहीं. आम बात है भाई. अचानक ऐसे तो प्रतिभा ने निषेध कर दिया है, निषेध कर दिया है. तो तत्व से विरोध है. ये कहा था न कारात्री गुलाबचंद जी मिला था ત્યાં ચોટીલા. એને વાત કરી કે સાચી વાત છે. गुलाबचंद 15 वर्ष की उम्र, 95 में दीक्षा, चोटीला में मिला नेवासी के साथ. जेठ मास प्रतिमा है शास्त्र में. अब श्वेतांबर शास्त्र में, अपना शास्त्र में प्रतिमा का पूजा है. मेरी तो जिंदगी शंका में गई कि जो शीश वांचे तो शंका पड़ी जाएगी कि पूजा है ना स्थान का धर्म कैसा है. बोले हमारी पास तो कोई ऐसा मध्यस्थ मान है उसकी बेगा उतरते, खुद ये उतरते नहीं. बोले कि बात तो सच्ची है, प्रतिमा है, पूजा भी है. दो बात किया था रात्रि. दूसरी बात ज्ञान क्रिया की. क्या ज्ञान क्रिया में मोक्ष कहते हैं भगवान? ये क्या कि तुम्हारा शास्त्र का ज्ञान और राग की क्रिया ही नहीं. ચોટીલામાં મેળી ઉપર વાત થઈ છે. ગુલાબચંદજી રતનચંદની સતાવધાની હતા, એના શિષ્ય સતાવધાની, એના ગુરુ. જ્ઞાન તો આત્મા કા જ્ઞાન અને ક્રિયા એટલે આત્માના જ્ઞાન में સ્થિરતા એ ક્રિયા.
આ તમારી મહાવ્રતની ફાવ્રતની ક્રિયા એ ક્રિયા મોક્ષના કારણ નહીં. કબૂલ ક્યાં બંધ ખાંડી કોઈ મારી છાપ તો મોટી હતી ને, સંપ્રદાયમાં મોટી છાપ હતી. ગાંધી સ્વામી કે છે એની વિરુદ્ધ બોલશે તો એનું માનશે ને આપણે નહીં માને કોઈ લોકો માને. હા એ કહ્યું ને મોહનલાલજીનું 85 मोहनलाल जी मोहन माला छपाई थी, एम ऐसा देखा था कि अभवी ने 5 आवरण होवाए, कारण कि अभवी ने मन प्रज्ञान सर्वज्ञान होता नहीं कि अभवी, तो उसके 3 आवरण होवाए, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान विभंग 3 आवरण, मन पर के ज्ञान आवरण न हो. तो बड़ी चर्चा हुई 85 की साल, कितना वर्ष हुआ, 15 ने 20 ने 50 वर्ष पहले की बात है. ये तो नहीं, झूठ है तुम्हारी बात. मोहन माला छपाई थी पुस्तक, तो उसमें लिखा था कि अभवी को 3 आवरण, नहीं झूठ बात है कि अभवी को 5 आवरण है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान बुद्धि मन पर केवल ज्ञान भले केवल ज्ञान नहीं होता है, माटी के आवरण नहीं, आवरण है केवल ज्ञान शक्ति है अंदर. मोहनलाल जी था नहीं ओळख्या, मोहनलाल नहीं जानता है, नहीं घना वर्ष थी गया, हमें तो भेगा रही घना वर्ष लिखू. 3 आवरण होता है, अने संकिति जो भव्य होता है उसको प्रकृति हत्या भी होती है, अभवी को मोहनी प्रकृति की, अभवी को छवि होती है कि तू झूठ है. अनादि की मोहनी प्रकृति की छवि अभवी न भवी 2 की छवि होती है, हत्या विश्व में नहीं. बहुत चर्चा होती थी 50 वर्ष पहले, पर नहीं भूली सके नहीं ये वक्ते, कारण के लोग के कहीं पर जो कई बात अपन થાય છે એનું માનશે ને આપણને નહીં માનશે. છાપ એવી હતી ને. भगवान को केवल ज्ञान आवरणी अभवी को भी होता है, क्योंकि अभवी में केवल ज्ञान शक्ति है, सर्व जीव सिद्ध समान है, तो केवल ज्ञान उसकी शक्ति है, अतीन्द्रिय आनंद शक्ति है, उसमें आवरण है तो आवरण टाल सकते नहीं. समझ में आया? लोकोने कई तत्वनी खबर न મળે ને અમને માહિતી રાખે. आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमय प्रभु सिद्ध का भी अभवी का अतीन्द्रिय आनंदमय है, अभवी का भी केवल ज्ञानमय आत्मा है, तो केवल ज्ञानावरणी प्रकृति है, उसको आवरण है. समझ में आया? एम यहाँ प्रतिमा की पूजा इंद्रो भी करते हैं कि तुम निषेध करता ही नहीं चाले, हम आ गया उसमें बैठे मान दे, ऐसा नहीं है. हम तो सत्य होगी मानेगा. ये कहते देखो देव गुरु यतिनी અને उनकी प्रतिमा, उनकी એટલે એકલી भगवान की प्रतिमा एम नहीं, 5 परमेश्वर की प्रतिमा शास्त्र में चल जाए. मुनि साचा और संत भावलिंगी, अभी तो द्रव्यलिंगी का ठिकाना नहीं, उसकी प्रतिमा करते हैं. आ तो शास्त्र में 5 परमेश्वरी हरियंत सिद्धनी प्रतिमा है ना, वो खाली भाग अपने है ना खाली, आचार उपाय साधु की प्रतिमा होती है पंच साचा हो उसकी हो. ये अहिया कहा देखो देव गुरु ने यतिनी અને उनकी प्रतिमा की पूजा में शुभ है. आहारादि चतुर्विध दान में आहार औषधि आदि देना मुनि को, એમાં શું ભાવે? समझ में आया? आहार पानी अपन पान खाई में 4 बोले ने, आहार पानी 4 प्रकार, 4 प्रकार का आहार देना मुनि को शुभ भाव है. धर्म नहीं, धर्म तो आत्मा के आश्रय होता है, पर के आश्रय में तो शुभ भाव होता है. है आहार पानी असन पान खाए मंग साय मंग, चतुर्विध दान में 4 प्रकार का दान में शुभ भाव है.
आचार्य आदि शास्त्रों में कहे हुए शील व्रतों में क्या कहते हैं? शील व्रतों 12 व्रत, पंच महाव्रत, एक आचार्य आदि शास्त्र में कहे हुए शील व्रतों में, उपवास आदि तप में प्रीति का होना ये धर्मानुराग है, शुभ राग है, शुभ उपयोग है। पंडित जी आई बात से टीका मत करूं, लेकिन संस्कृत टीका में जैसन आचार्य दिगंबर मुनि उसने बहुत लिखा है, बहुत। देवता निर्दोषी परमात्मा इंद्रिय जयन शुद्धात्म स्वरूप प्रयत्न पर होती स्वयं वेदा वेद रत्न आराधक अर्थीनाम भव्यानाम जिन दीक्षाराय को गुरु संस्कृत है। पूर्वोक्त देवता यति गुरुनाम तत् प्रतिबिंबा नाम है पाठ, देखो ऐसे संस्कृत टीका नहीं है, અહીંયા है तत् प्रतिबिंबा नाम, તેનું પ્રતિબિંબ એટલે મૂર્તિ है जय समाचार दिगंबर मुनि जय समाचार टीका है। तत्प्रतिबिंब मूर्ति, तत्प्रतिबिंबा नाम यथासंभव द्रव्य भाव रूपा पूजा दे हो। भाव पूजा करे वो भी शुभ भाव है, द्रव्य पूजा करे तो शुभ भाव है। सुजान जी આવું છે બાપુ, આ તો વિતરાગ સ્વભાવ। મુનિઓ कहते हैं देखो पंच महाव्रतधारी અને साचा संत छठे सातवें गुणता में जोड़ने वाला ये टीका करते हैं कि तीन प्रतिबिंब होता है, प्रतिमा होती है। हाँ हाँ हाँ, आचार उपवास आदि तप में प्रीति का होना ये धर्मानुराग है। जो आत्मा द्वेष रूप ने विषयानुराग अशुभ उपयोग को पार करके धर्मानुराग को अंगीकार करता है वह शुभ उपयोगी है। अशुभ उपयोग को छोड़कर विषय न भोग व्यापार धंधा आदि न धर्मानुराग आवा शुभ उपयोग करे, शील में, व्रत में, तप में, पूजा में, तो ये शुभ उपयोग है। राइट नहीं તમે 2,02,000 આપ્યા, હું શુભ હોય તો શુભ આવે, ધર્મ ભર્મ નહીં। 3 લાખ એટલા આપ્યા છે, ખબર નથી આપણને। હું સાંભળ્યું 2,02,000 આપ્યા, 3 લાખ આપ્યા છે। કારણ કે દીકરો નથી, દીકરી નથી, બાયડી મા બા 3 જણા હે। પણ જુવાન માણસ એટલા છતાં એ તમે ઉદારતા તો દેખો। 3 લાખ આપેલું એની ખબર હતી, મેરો બીરે છે ને હશે ભાઈ, 2 લાખ આપે તો હું તો કેતે કરા હે। शुभ राग है, शुभ उपयोग है। यह आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का साधन नहीं, इंद्रिय विषय उससे मिलेगा, देव स्वर्ग का लक्ष्मी आदि मिलेगी, आत्मा उसे मिले नहीं। हाँ 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 हाँ, छता धर्मी को भी मुनियों भी पूजा करते भगवान की, ये भाव पूजा करते हैं। फूल ने ऐसा नहीं मुखे, पानी के जल अड़े नहीं, सचेत है ना पानी जल, फूल सचेत है, अड़े मुनियों नहीं, भाव पूजा करे। पर ये शुभ भाव है, ये हमने टीका में है। यथा संभव द्रव्य भाव पूजा, द्रव्य भाव रूपा पूजा, जो द्रव्य पूजा ने भाव पूजा। पंडित जी है अंदर, संस्कृत है जैसा नाचार नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, टीका है। हाँ तो सब टीका भी देखिए, करोड़ों सब लोग का दिखा है, सब दिखा है, टीका है है। द्रव्य भाव पूजा 2 ही
ભલે પૂજા ફૂલ આદિ ન હોય મૂકે, પણ ભાવ સહી કરે તો પણ શું ભાવે? મુનિ તો કઈ फूल ने पानी के मुके नहीं के पूजा नहीं करते, ग्रस्त मुके ऐसा पुण्य नहीं करते, मुनि भाव से करते हैं। भाव शुभ है। में તમે તો બધા થાને કોઈ હતા? હા, પણ થઈ ગયા, હવે તો થઈ ગયા। હા હા હા, તો બહાર ગયા છે આ કોઈ સંપ્રદાય નથી, અહીં તો વસ્તુ આવે। આગમ પંથનું ભાઈ આજ આવ્યું છે, આગમ પંથ તો છાપવું નીકળે છે ને, આજ જ આવ્યું કોઈ પેલા દિલ્હીમાં છે આગમ પંથ પુસ્તક આપણા અહીંનું તરફનું છે, કોઈ લેખ બહુ લખ્યા સારા, ઘણા લેખા આજ આવ્યું, ત્યાર સુધી કઈ આવ્યું નથી। એક વાર સાંભળ્યું હતું કે આગમ પંથ નીકળે છે દિલ્હીમાં છે, પણ આજ આવ્યું છે। રંગુલાલ નહોતા કાને બેરાને, એનો લેખ છે, બધા લેખ છે કે અત્યારે તો રંગુલાલ નો બીજા મુનિ બીજા ગ્રस्तों लेख છે, બહુ લખ્યું છે। અત્યારે जैन धर्म की प्रभावना होती है तो सोनगढ़ में होती है, ये जैन धर्म की स्थापना उसने किया भी है, लिखा है, बहुत लिखा है, पुस्तक पत्र आया है। हाँ कहते हैं जो आत्मा द्वेष रूप ने विषयानुराग रूप अशुभ उपयोग को पार करके अशुभ छोड़ करके धर्मानुराग को अंगीकार, धर्मानुराग पुण्य शुभ करता है, वह शुभ उपयोग है। अब इंद्रिय सुख को शुभ उपयोग के साध के रूप में शुभ उपयोग साधन है और उसका साध इंद्रिय सुख है। ये शुभ उपयोग में आत्मा का सुख नहीं मिलेगा, एम कहते हैं, इंद्रिय का सुख मिलेगा, विशेष कहेगा। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। હવે સુખધામ બોલીએ। સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન રાત